Welcome to today's class on The Tempest by William Shakespeare. As we begin our journey through its enchanting tragicomedy, we will uncover how magic, power, betrayal, and redemption shape the lives of shipwrecked souls on a mysterious island. Let's step into the storm and discover the deeper currents beneath Shakespeare's word. So basically, Shakespeare plays is regarded as a mark of culture, and there is hardly any language community in the civilized world which does not possess Shakespeare in translation. So today we will begin our lecture with Act 1, and in this act we have two scenes. So this is the beginning act of the play. The scene 1 of the play opens with a storm scene, a ship forced ashore, Alonso, Sebastian, Antonio, Ferdinand, and Gonzalo. These five make their appearance. The ship is ultimately discarded. So basically, the scene 1, the play, opens aboard a ship caught in a violent storm at sea near a Mediterranean island. The boatswain and his crew are trying to keep the ship from wrecking, shouting commands and struggling against the chaos of the tempest. So the setting is aboard a ship at sea. So noble passengers including Alonso, he is the king of Naples, his brother Sebastian, his son Ferdinand, and Antonio, Duke of Milan, who is Prospero's brother, and Gonzalo, a old and kind counselor, a loyal courtier, and others. They all are panicked and try to interfere the sailors' work. So boatswain angrily tells them to stay below the deck and let the professionals handle the ship. But the nobles are offended by this command, particularly Gonzalo, who tries to stay optimistic. As the storm intensifies, the crew believes that the ship is doomed, and cries are heard indicating the shipwreck. So the scene ends in confusion and apparent disaster, because वो जो disaster हुआ है, वो जो storm आया है, मतलब जो tempest है, ये बहुत ही all of sudden हुआ है. So a terrible storm strikes a ship at sea carrying King Alonso of Naples, his son Ferdinand, and his brother Sebastian, along with Duke Antonio of Milan, Gonzalo, and others. The crew, led by the boatswain, he tries to save the ship, but tension flares between the sailors and the noble passengers who interfere with navigation. So यहाँ पे ना ये जो बोट्सवेन है, ये थोड़ा सा इनको कमांड दे देता है, तो जिससे ये नोबल मैन जो है ये थोड़े से ऑफेंड हो जाते हैं. So the ship appears to be sinking in the sea water. So the scene ends in chaos and panic as the shipwreck seems inevitable. So जो ये scene है, it creates immediate tension and opens the play with confusion and fear. It set up a world turned upside down where authority is challenged. जो बोट्सवेन है उसने जो कमांड दिया है ना नोबलमैन को, so this is a good perfect example where authority is challenged and fate is uncertain. Setting मैंने आपको बता ही दिया है. It is the ship aboard a ship at sea caught in a storm conjured by Prospero's magic. Actually जो storm हुआ है ना, जो tempest आया है, this is all because of Prospero's magic. गोंजालो ने जब उसको हेल्प किया था ना, उसको एस्केप करने में हेल्प कराया था, तो उसने उसकी कुछ बुक्स को उसके साथ रख दिया था, और उसी बुक्स के मैजिक की वजह से उसने
जिस आइलैंड पे वो गया वहाँ पर उसने उस विच को भगा दिया, वहाँ पे सारा कंट्रोल ले लिया, और यही उसकी पावर्स थी जो उसने स्टॉर्म क्रिएट किया. सो द सेटिक इज सिम्बॉलिक, a chaotic and uncontrollable natural force confronting political power. Storm acts as a metaphor for the disorder in the kingdom and the inner storm in Prospero's soul. तो यहाँ भी storm जो है दो तरीके का, एक तो फिजिकल है कि वो किंगडम में डिसऑर्डर ले आया है, और दूसरा उसका इनर स्ट्रॉम है प्रॉस्पेरो की के जो इनर सोल है उसमें. सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लॉट. If we talk about themes, so first is power and authority. तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ना कि बॉट्सवेन ने कमांड किया उनको और बोल दिया कि तुम इंटरफेयर मत करो, सेलर्स अपने आप देख लेंगे और तुम्हें बचा लेंगे. तो देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नोबल पैसेंजर्स एंड द शिप्स क्रू. इट चैलेंजेस द ट्रेडिशनल सोशल हायरार्की एज बॉट्सवेन अ कॉमनर कमांड्स किंग्स एंड ड्यूक्स. तो बॉट्सवेन तो एक सेलर है, एक कॉमनर है, वो वहाँ कमांड कर रहा है, उनको ऑर्डर दे रहा है कि स्टे अवे विद दिस, वी विल मैनेज, वी विल फाइंड आउट अ वे, वी विल मतलब डोंट इंटरफेयर इन आवर नेविगेशन. सो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट पावर एंड अथॉरिटी. नेक्स्ट इज नेचर वर्सेस ह्यूमन कंट्रोल. सो द टेम्पेस्ट विच इज़ अ नेचुरल फोर्स. सो इट शोज़ हाउ पावरलेस ह्यूमन्स आर अगेंस्ट नेचर. प्रॉस्पेरो का जो मैनिपुलेशन है ऑफ नेचर, उसने ही तो ये क्रिएट किया है ना. सो प्रॉस्पेरोज मैनिपुलेशन ऑफ नेचर थ्रू मैजिक इंट्रोड्यूसेस द थीम ऑफ मैन्स इंटरवेंशन इन नेचर. मैन का ही इंटरवेंशन है नेचर में, क्योंकि स्टॉर्म एक नेचुरल डिज़ास्टर है, इसमें किसी इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है. ना इंसान की किसी की मर्ज़ी से ये आ सकता है, ना ही हमारी बिना मर्ज़ी के आ सकता है. ऐसा नहीं कि हम नहीं चाहते तो ये आ गया, हम चाहते हैं नहीं आए तो नहीं आया, ऐसा नहीं है, ये हमारे ऊपर नहीं है. तो यहाँ पर ये एक तरह का फीचर है, थीम है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो मैनिपुलेशन है प्रॉस्पेरो का, उसने नेचर को कंट्रोल किया है, ह्यूमन का कंट्रोल है ओवर द नेचर. ठीक है. नेक्स्ट इज़ फेट एंड फ्री विल. सो नॉबल्स का जो हेल्पलेसनेस है वो उनका फेट है. ड्यूरिंग द स्टॉर्म दैट इलस्ट्रेट्स देयर लैक ऑफ कंट्रोल ओवर डेस्टिनी बिगिंस द फिलोसफिकल इंक्वायरी इनटू वेदर फेट और ह्यूमन चॉइस गवर्न्स लाइफ. तो यहाँ पर फिलोसफिकल इंक्वायरी है कि भाई फेट और ह्यूमन जो है वो कोई चॉइस नहीं देती है, बल्कि वो गवर्न करती है लाइफ को. मतलब जब फेट होता है उस पर हमारी फ्री विल नहीं होती है, जो डेस्टिनी में लिखा है हमें मानना ही पड़ेगा. तो जितने भी लोग मतलब क्रूज़ के सेलर्स के साथ हैं, शिप पर हैं, पैसेंजर्स हैं, वो सब फेट के आगे मजबूर है, उनकी कोई विल नहीं है. जो होगा नेचर करेगी. अभी तो उन्हें तो यही लग रहा है ना कि नेचर है, ये नेचुरल डिज़ास्टर है, तो जो करेगा नेचर करेगी, हमारे हाथ में कुछ नहीं है. अगला है क्योर्स एंड ऑर्डर. सो द टेम्पेस्ट द स्ट्रॉम डिस्टर्ब्स नेचुरल एंड सोशल ऑर्डर. ये बात तो पक्की है, उसने ऑर्डर को ख़राब कर दिया. द प्ले विल मूव टूवर्ड्स रिस्टोरिंग हार्मनी. लेकिन हाँ, ये जो क्योर्स हुआ है टेम्पेस्ट की वजह से, जो ऑर्डर डिसबैलेंस हुआ है, ये आगे चलकर हार्मनी को रिस्टोर करेगा, क्योंकि ये ट्रैजिक कॉमेडी है. इसमें एंड जो होता है वो हैप्पी होगा, और इसमें सारे बुरे कैरेक्टर्स अपनी गिल्ट में आ जाएंगे, रिपेंट कर लेंगे, और प्रॉस्पेरो को दोबारा से उसका ड्यूकडम मिल जाएगा. तो जो चीज़ें पहले ख़राब हुई है उनको रिस्टोर किया जाएगा. इफ यू टॉक अबाउट मोटिव्स, तो पहला है सी एंड स्टॉर्म. सो इट रिप्रेजेंट्स इमोशनल एंड पॉलिटिकल ट्रबुलेंस. ठीक है. तो सी और स्टॉर्म जो है वो इमोशनल और पॉलिटिकल चीज़ों को दिखाता है. दूसरा है हायरार्की. द बोट्सवेन स्पीकिंग टू द नॉबल्स एज इन्फीरियर्स हाईलाइट शेक्सपियर्स इंटरेस्ट इन रोल रिवर्सल. तो यहाँ पर ये जो बोट्सवेन ने कमांड किया है नोबलमेंस को, ड्यूक्स को, किंग्स को, उन्हें ऑर्डर दिया है कि मतलब उससे दूर रहें. तो शेक्सपियर ने ना यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंगली रोल्स को रिवर्स किया है कि अब बेचारे ये ड्यूक्स और जो किंग्स हैं उनको कॉमनर्स की यानी कि सेलर्स की बात माननी पड़ेगी. ठीक है. नेक्स्ट है ड्राउनिंग एंड डेथ. इमेजरी द सी हिंट्स एट रीबर्थ
एंड ट्रांसफॉर्मेशन नॉट जस्ट डिस्ट्रक्शन। तो मतलब सी हिंट कर रहा है कि भाई अब उनकी लाइफ जो है वो ख़त्म होने वाली है, उनका रीबर्थ होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, अब हम कुछ की कोट्स की बात करते हैं। मतलब विद इन द प्ले सीन 1 में, एक्ट 1 सीन 1 में आपको ये कोट्स मिल जाएंगे जो इन कैरेक्टर्स ने बोले हैं, इनका हम डीप मीनिंग समझेंगे। सो जो पहला डायलॉग है ये बॉट्सवेन का है, ये आपको 14, 15, 16 लाइन में मिल जाएगा। ये शुरू की, बिल्कुल शुरू की लाइन है। व्हाट केयर्स दिस रोड्स फॉर द नेम ऑफ किंग। सो ना बॉट्सवेन जो है, मैंने आपको बताया ना कि वो उसने ऑर्डर दे दिया किंग्स को, ड्यूक्स को। तो वो ऐसा बोलता है कि व्हाट केयर्स दिस रोड्स ऑफ द नेम ऑफ द किंग। मतलब वो इस लाइन से वही कह रहा है कि बॉट्सवेन कह रहा है, एक कॉमनर कह रहा है कि समंदर का जो, मतलब सी का जो तूफ़ान है, जो टेम्पेस्ट है, वो किसी भी किंग या उनके टाइटल की परवाह नहीं करता। जो ये रोड्स है ना, दीज रोड्स, इसका मतलब यहाँ पर है टेम्पेस्ट, या ये बोलिए तूफ़ान, या स्टॉर्म बोल लीजिए। मतलब जो स्टॉर्म है ना, जो रोड्स हैं, वो किसी बात की परवाह नहीं करती, किसी भी राजा के नाम की परवाह नहीं करती है। जो ये समुंदर में आया स्टॉर्म है, वो किसी राजा के नाम की ना परवाह करती है, ना उसे कोई इम्पोर्टेंस देगी, ना उसे कोई मतलब है। अगर आज इस बोट पर, इस शिप पर अगर मरना ही लिखा है तो वो सबको मार देगी। ये जो लहरें उठ रही हैं स्टॉर्म में, वो हम सबको मार देगी। और अगर आज हमारा बचना लिखा है तो हम सब बच जाएंगे, चाहे हम में से कोई कॉमनर हो या फिर कोई किंग हो या ड्यूक हो। अगर मरना लिखा है ना तो आज हम सब मर जाएंगे। सो अगर हम यहाँ पे थीम की बात करें तो नेचर वर्सेस पावर यहाँ पे दिख रहा है। ये लाइन एक काफ़ी स्ट्रिक्ट रिमाइंडर है कि नेचर और ह्यूमन मेड, जो नेचर है ना, मतलब ये एक टाइप का रिमाइंडर है कि जो नेचर है वो ह्यूमन मेड हायरार्की को नहीं मानता। ये ह्यूमन मेड ही तो है, मैन मेड हायरार्की तो है कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई राजा है, कोई कॉमन है, कोई रॉयल है, कोई नहीं है। ये सब मैन मेड है। और नेचुरल चीज़ें जो हैं, चाहे वो नेचुरल डिज़ास्टर ही क्यों ना हो, वो किसी मैन मेड चीज़ को नहीं मानता, ना उसकी परवाह करता है। व्हाट केयर्स, परवाह नहीं करता है ये। सो शेक्सपियर यहाँ डिवाइन ऑर्डर वर्सेस नेचुरल क्योर्स का कॉन्ट्रास्ट एस्टेब्लिश करता है। यहाँ पे पॉलिटिकल कमेंट्री भी है कि बॉट्सवेन इनडायरेक्टली मोनार्की को रिडिक्यूल कर रहा है। जब क्राइसिस आता है, मतलब ये क्राइसिस तो है कि स्टॉर्म आ गया है, सबकी लाइफ पे बात आ गई है। मतलब जब भी क्राइसिस आता है तो हमको एक्चुअल स्किल्स चाहिए होते हैं, ना कि टाइटल। सपोज़ अगर ये स्टॉर्म आया है और सबको सी में कूदना पड़े, तो बचेगा कौन? जिसको तैरना आता होगा। वो टाइटल से फ़र्क नहीं पड़ता, भले ही वो कोई राजा ही क्यों ना, अगर उसको तैरना नहीं आता तो वो नहीं बच पाएगा। भले ही कोई कॉमन इंसान अगर बहुत अच्छा स्विमर है तो वो बहुत दूर तक भी चला जाएगा तैर कर। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल कमेंट्री भी है कि जब भी क्राइसिस आता है तो वो एक्चुअल स्किल्स वहाँ पर हमारे काम आते हैं, वहाँ कोई टाइटल काम नहीं आते। अच्छा, ये जो लाइन है ना, ये किंग लियर से भी कनेक्टेड है। कैसे? क्योंकि जब किंग लियर में भी एक्ट 3 में जब स्टॉर्म आता है तो वहाँ पर भी जब क्राइसिस आता है तो तभी लियर भी स्टॉर्म में ही ये रियलाइजेशन करता है कि वो एक लाइन थी ना वहाँ पर, इज़ मैन नो मोर देन दिस, कि जब भी कुछ बुरा होता है वहाँ पर इंसान के अपने एक्चुअल चीज़ें ही काम आती हैं, उसके अपने स्किल्स ही काम आते हैं, उसका टाइटल काम नहीं आता। तो ये जो लाइन है ना, ये वहाँ उस वाले स्टॉर्म से भी कनेक्ट होती है। ठीक है, अब ट्रैजिक कॉमेडी एंगल यहाँ पर ये है कि ह्यूमर और आयरनी के थ्रू एक सीरियस पॉइंट को उठाया गया है। ये कॉमेडी ऑफ विजडम है। मतलब इस पर हम हंस भी सकते हैं कि यहाँ पर जान पर बनी आई है और लोगों को अपने टाइटल्स की चिंता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस कोट। अब नेक्स्ट जो कोट है वो है ये वाली, गोंज़ेलो का डायलॉग है ये भी आपको 25 लाइन्स के बाद 26, 27, 26 to 28 पर मिल जाएगा। ये गोंज़ेलो कह रहा है, आई हैव ग्रेट कम्फर्ट फ्रॉम दिस फेलो, मी थिंक्स ही हैड नो ड्राउनिंग मार्क
अपॉन हिम हिज कॉम्प्लेक्शन इज परफेक्ट येलोज। तो यहाँ पर ना गोंज़ेलो मजाक में कह रहा है कि बॉट्सवेन का जो चेहरा है ना वो तो लटकाए जाने लायक है। मतलब उसने हमें ऐसे बोल दिया ना, किंग्स वगैरह को ऐसे बोल दिया। खैर गोंज़ालो तो खुद का किंग नहीं है, लेकिन उसने किंग्स को बोल दिया, तो कहीं ना कहीं उसको उसके मन में ये भी है कि इन्होंने प्रॉस्पेरो के साथ गलत किया, ये सारे बहुत ही करप्ट लोग हैं। तो इस तरह की बेइज्जती जो इसने क्या नाम है बॉट्सवेन ने की है, तो इस पर इसको थोड़ी सी हंसी भी आ रही होगी। तो ये मजाक में कहता है कि भाई बॉट्सवेन का जो फेस है ना, मतलब जो उसका हेड है, ये तो लटकाए जाने लायक लगता है, डुबाने लायक नहीं। मतलब ये जो अगर हम डूब जाएंगे तो डूबना नहीं चाहिए, इसको तो लटकाना चाहिए। मतलब इसका मतलब है कि हम सब बच जाएंगे, यहाँ पर ये है। अब देखिए इसका अगर हम थोड़ा डीपली सोचें कि क्या मतलब है ना बनेगा इसका, तो ये क्लासिक शेक्सपियर एंड गैलोस ह्यूमर है। मतलब यहाँ पे मौत के सामने भी लोग हंस रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं ना कि मेरे को बड़ा ग्रेट कंफर्ट है इस बात से, इस फेलो के लिए। मैं ये सोचता हूँ कि ये तो ना इसको ये डूबेगा नहीं, इसको तो लटकाया जाएगा। मतलब यहाँ पर ये है, ये बोलता है ना कि मुझे लगता है कि ये आदमी डूबाना नहीं चाहिए, डूबना नहीं चाहिए, इस आदमी को तो लटकाया जाना चाहिए। अब लटकाएंगे कब? जब वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, जब अपने किंगडम पहुँच जाएंगे, जब भी तो लटकाया जाएगा। तो गोंज़ालो को कहीं ना कहीं बॉट्सवेन के स्किल्स पर और थोड़ा सा अपनी किस्मत पर भी भरोसा है कि वो बच जाएंगे, वो सभी बच जाएंगे। तो यहाँ पर गोंज़ेलो को लगता है कि वो बच जाएंगे, और वो यहाँ पे मजाक कर रहा है। तो मतलब ये जो डायलॉग है गोंज़ेलो का, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये लोग मौत के सामने भी हंस रहे हैं, हंस तो रहे ही हैं। जो यहाँ पर थीम है फेट एंड डेस्टिनी, इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब जो गोंज़ेलो है ये फेस रीडिंग पर भरोसा करता है। ये दिखाता है कि लोग कैसे सुपरस्टिशन और अपीयरेंस से फेट डिसाइड करते हैं। मतलब वो शायद बॉट्सवेन का चेहरा देखकर उसके कॉन्फिडेंस को उसने जज कर लिया कि ये बहुत कॉन्फिडेंट है, ये हमें बचा ही लेगा। तो यहाँ पे अपीयरेंस और फेट मतलब सुपरस्टिशंस में है लोग कि चेहरा देखकर फेस रीडिंग करके ये ऐसे डिसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस डायलॉग के थ्रू हमें गोंज़ेलो का ह्यूमर और ऑप्टिमिज़म देखने को मिलता है। और ये बाद में प्ले में एक मॉरल एंकर भी बन जाता है। ये यहाँ पर कॉमेडी एंगल पता है क्या है? वो ये कि ट्रेजेडी की पॉसिबिलिटी के बीच भी एक लाइट मोमेंट ये क्रिएट कर रहे हैं। मतलब तूफ़ान आया है, इनका शिप डूब रहा है और ये मजाक कर रहे हैं। तो ट्रेजिक कॉमेडी है, इनसे ट्रेजेडी हो रही है, स्टिल इनके पास कॉमिक है, ह्यूमर है। चलिए नेक्स्ट बॉट्सवेन का ही डायलॉग है, यू आर अ काउंसलर, इफ़ यू कैन कमांड दीज एलिमेंट्स टू साइलेंस यूज़ योर अथॉरिटी। ये जो है ना यहाँ पर बॉट्सवेन सरकास्टिकली कह रहा है कि तुम अगर काउंसलर हो, तुम अगर पॉलिटिशियन हो, तो भाई मतलब तुम लोग ऐसे मुझे ऑर्डर दे रहे हो, बीच बीच में मुझे नेविगेट कर रहे हो। अगर तुम पॉलिटिशियन हो तो स्ट्रॉन्ग को चुप करो ना। मतलब यू आर अ काउंसलर, मतलब तुम इतना ही सलाहकार बन रहे हो, तुम इतना ही मुझे सलाह दे रहे हो, मेरे काम में तुम इतना ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हो, तो अगर तुम कमांड देने लायक होगी, कमांड ही तो दे रहे हैं वो सारे नोबलमैन, सारे किंग ड्यूक्स बॉट्सवेन को, भाई तुम इतने ही अगर तुम्हारी चलती है तो अपनी ये कमांड वाली जो ये एलिमेंट है ना, ये इसको दो, ये इन एलिमेंट्स को दो। किसको दो? स्टॉर्म को दो, सी को दो, ताकि वो चुप हो जाए, जाओ अपनी अथॉरिटी यूज़ करो। तो ये ना यहाँ पर बॉट्सवेन जो है ही चैलेंजेस टू एरिस्टोक्रेसी, ये डायरेक्ट चैलेंज है पॉलिटिकल हायरार्की को कि सी में सब इक्वल हैं, तुम जो इतना मुझे इतना ज्ञान दे रहे हो, मुझसे इतना ऑर्डर चला रहे हो, तुम चुपचाप बैठ जाओ। अगर तुम्हें ज़्यादा ही तुम चुप करा सकते हो, अगर तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है, तो जाओ सी को कराओ, स्ट्रॉन्ग को कराओ। और ये पावरलेसनेस ऑफ वर्ड्स है, पॉलिटिकल पावर जहाँ स्पीच बेस्ड होती है, बॉट्सवेन के वर्ल्ड में एक्शन एंड स्किल मैटर करता है। यहाँ पर बॉट्सवेन जो है वो सिंबल है न्यू वर्ल्ड का, प्रैग्मेटिज्म का, दैट ग्राउंडेड इन मेरिट। ये मेरिट्स के ऊपर बात करने वाला इंसान है, ये टाइटल्स के ऊपर नहीं। ये ह्यूमर के थ्रू, मतलब एक तरह से मजाक ही तो उड़ा रहे हैं इनका, लेकिन ह्यूमर के थ्रू एक बिटर ट्रुथ रिवील करता है कि पावर का इल्यूजन अब टूट रहा है। तुम सब कहने को राजा हो, ये हो, वो हो, तुम नोबेल मैन हो, तुम ड्यूक्स हो, तुम किंग हो, लेकिन अब तुम बिल्कुल हेल्पलेस हो।
अगर कुछ कर सकता है कि मतलब अगर कोई इस सिचुएशन में कुछ कर सकता है, अगर किसी को कुछ करना आता है तो वो मैं हूँ। इसलिए तुम्हें अगर ज़्यादा ही तुम्हें अपनी बात मनवानी है तो सी को मनवाओ, मुझे नहीं, मुझे मत बताओ तुम कुछ भी। अगला है एंटोनियो का डायलॉग है, ये भी थोड़ा सा 42 लाइन पे मिल जाएगा आपको। वी आर मेरेली चीटेड ऑन आवर लाइफ्स बाय ड्रंकर्ड। ये जो ड्रंकर्ड है ना, मैंने आपको पिछली वाली क्लास में एक कैरेक्टर बताया था जो हमेशा पीता रहता है, उसका नाम था, एक सेकेंड, एक्चुअली ये ना किसी एक कैरेक्टर को भी ड्रंकर्ड नहीं कह रहा है, ये सबको, जितने भी वहाँ लोग हैं सबको, क्योंकि वो सब अभी अल्कोहल ले रहे थे, उन्हें ड्रंकर्ड कहकर इंसल्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये ड्रंकर्ड्स एक्चुअली, यहाँ ड्रंकर्ड लिख दिया मैंने, ड्रंकर्ड्स है ये एक्चुअल लाइन में। तो यह एंटोनियो ब्लेम कर रहा है सेलर्स को, उसको सेलर्स को, कि तुम भाई शराब पी कर चला रहे हो सेल, तुम्हारी गलती से ये सिंक हो रही है हमारी शिप जो है, और तुम्हारी गलती की वजह से हम सब मर जाएंगे। तो एंटोनियो यहाँ ब्लेम कर रहा है सेलर्स को, उन्हें ड्रंकर्ड कहकर उन्हें इंसल्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ना हम एंटोनियो तो क्योंकि एक नोबल मैन है, यहाँ पर एरोगेंस ऑफ नोबिलिटी का थीम देखने को मिलता है। एंटोनियो जैसे करेक्टर जिनके खुद के एक्शंस मॉरली करप्ट है, उसने अपने खुद के भाई को यूज़अप किया, उससे सारा थ्रोन और पावर सब छीन लिया, डुगडम छीन लिया। अब वो उससे कह रहा है कि भाई तुम पी कर, तुम्हारी गलती है ये। तो एंटोनियो जैसे करेक्टर जिनके खुद के एक्शंस मॉरली करप्ट हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, दिस रिफ्लेक्ट्स मॉरल ब्लाइंडनेस, ये मॉरल ब्लाइंडनेस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये खुद तो इतना करप्ट है, दूसरे को भूल रहा है ये। और यहाँ पर ना डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लेम भी है, मतलब एक ट्रेजेडी में कैरेक्टर्स अपनी गलतियों को नहीं देखते बल्कि दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो एंटोनियो भी यहाँ पर यही कर रहा है। यहाँ पर क्लास का कॉन्फ्लिक्ट भी है। एंटोनियो का ये डायलॉग मतलब क्लास कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो खुद नोबल है और जिसको उसने ये बोला है, मतलब मैरिनर्स को बोला है, सेलर्स को बोला है, वो वर्किंग क्लास है। तो यहाँ पर नोबल क्लास और वर्किंग क्लास का टेंशन देखने को मिलता है। और ट्रेजी कॉमेडी एलिमेंट ये है कि ये सीरियस मोमेंट है, लेकिन अभी भी जो एंटोनियो की जो ये इग्नोरेंस है कि वो इलॉजिकल बात बोल रहा है ना अभी यहाँ पर, वो डार्क कॉमेडी बन जाती है। अब ये डायलॉग है गोंजेलो का, ये काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक डायलॉग देखने को मिलता है। नाउ वुड आई गिव 1,000 furlongs for sea for an acre of barren ground। बहुत डीप मीनिंग है इसका देखा जाए तो। यहाँ पे गोंजेलो ना विश कर रहा है कि उसके पास एक बैरन लैंड है, बैरन ग्राउंड है। बैरन ग्राउंड होता है बंजर ज़मीन, इनफर्टाइल ज़मीन जिसकी फर्टिलिटी नहीं है। मतलब वो ये कह रहा है कि वो ये विश कर रहा है कि काश उसके पास एक बैरन ग्राउंड हो, सिर्फ ज़मीन भी हो तो चलेगा, क्योंकि अभी उनको क्या चाहिए, उनको ज़मीन चाहिए, क्योंकि हर जगह पानी ही पानी है, दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है सब जगह पानी है। तो पानी में उतरेंगे तो वो लोग मर जाएंगे, मरने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब उन्हें लैंड चाहिए, तो वो कह रहा है कि मैं तो अपने मतलब मैं तो निकाश मेरे पास चाहे बंजर ज़मीन ही क्यों ना होती, काश मेरे पास बंजर ज़मीन होती। यहाँ पे ना आयरनी ऑफ वैल्यूज़ की बात है। जिन्होंने मतलब एम्पायर्स बनाए, जिन लोगों ने मतलब इस शिप पर कैसे लोग हैं, शिप पर सारे ड्यूक्स हैं, किंग्स हैं, नोबल मैन हैं, जिनके पास बड़े बड़े एम्पायर्स हैं, बड़े बड़े पैलेसेस हैं। पता नहीं उन पैलेसेस में कितने कमरे हैं, वो कमरे कितने लग्जूरियस हैं देखा जाए तो। लेकिन जो अभी वो सब किस चीज़ के लिए तरस रहे हैं, वो तरस रहे हैं ज़मीन के लिए, चाहे वो ज़मीन कितनी बंजर क्यों ना हो, उसके लिए वो लोग तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं बिल्कुल। तो थीम यहाँ पर ह्यूमन वल्नरेबिलिटी है, मतलब क्राइसिस में ही रियल नीड की रियल नीड का पता चलता है हमें। और रियल नीड है हमारी यहाँ पर, इनकी यहाँ पर लैंड, सेफ्टी एंड सर्वाइवल। अभी इन्हें कोई किसी टाइटल की ज़रूरत नहीं है, किसी पैलेस की ज़रूरत नहीं, किसी एम्पायर की ज़रूरत नहीं है, किसी पावर की ज़रूरत नहीं है इनको। अभी इनको सिर्फ चाहिए बेसिक नीड, ये लैंड, सेफ्टी एंड सर्वाइवल। तो आइलैंड पर उतरने के बाद ये इनकी विश पूरी भी हो जाती है, ऐसा नहीं कि पूरी नहीं होती है। सिम्बॉलिकली रिन्यूअल का ये इंडिकेशन भी है।
इस डायलॉग के थ्रू हमें एक ट्रैजिक कॉमेडी एलिमेंट ये देखने को मिलता है कि लॉन्गिंग सीरियस है बट आयरॉनिक भी है। मतलब स्टेटस छोड़कर अब हमें मिनिमम चाहिए क्योंकि हमें अपनी जान बचानी है। जब जान ही नहीं रहेगी तो हम स्टेटस का कर क्या लेंगे। अगर हम इन सारे डायलॉग्स की बात करें तो ये ना कुछ थीम्स को इंसाइट करते हैं, जैसे नेचर सबको इक्वल ट्रीट करती है। तो ये बात हमें क्राइसिस से पता चलती है। जैसे कोरोना का टाइम आया था, कोरोना में अमीर था या गरीब, जब नहीं झेल पाए कोरोना को, उनकी बॉडी नहीं लड़ पाई कोरोना के वायरस से, मर गए वो लोग, चाहे कितनी अमीर हो, चाहे कितने ही पैसे हो। पावर का इल्यूजन भी यहाँ पर मतलब ये जो थीम है ये भी रिलीज़ होता है यहाँ पर। मतलब पॉलिटिकल और नोबल टाइटल्स जो है क्राइसिस में फ्यूटाइल हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं बिल्कुल। और यहाँ पर मतलब क्राइसिस में कई बार विजडम ऑफ कॉमनर्स ही काम आती है। मतलब बॉट्सवेन जैसे लोग प्रैक्टिकल विजडम रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉमिक ह्यूमर भी है, मतलब बीच में लोग अपने अपने डायलॉग्स बोल रहे हैं जो हमने भी डिस्कस किए। और ये एक स्ट्रॉन्ग जो है ना कैटलिस्ट है यहाँ पर, जो कैरेक्टर्स को न्यू वर्ल्ड में इवॉल्व करने का मौका देता है। अब वो जिस आइलैंड पर जाएंगे वो उनके लिए न्यू वर्ल्ड होगा, क्योंकि वो अपनी जान बचा के एक न्यू लाइफ पाकर वहाँ पर जाएंगे। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो सीन 1 में हमें कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। जैसे बॉट्सवेन मिला हमें देखने को, ही रिप्रेजेंट्स व्हाट, प्रैक्टिकल अथॉरिटी। ये प्रैक्टिकल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। और डिफायंस ऑफ सोशल ऑर्डर को ये रिप्रेजेंट करता है। गोंजालो की बात करें हम तो ये सिंबल ऑफ होप है, ये काफ़ी लॉयल है, इसमें कॉमिक विजडम है, इसके डायलॉग से काफ़ी दिखता है। एक हमें ओलोंजो, इसका कोई डायलॉग तो हमने डिस्कस नहीं किया, हमें वो भी पर देखने को मिलता है। एंटोनियो और सेबेस्टियन भी देखने को मिलते हैं। पर हमें क्या देखने को मिलता है इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, आप सीन पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। ये बस हेल्पलेस है स्टॉर्म में और अपनी मॉरल वीकनेस को ये फोरशैडो कर रहे हैं। एक और कैरेक्टर है यहाँ पर जो कोई इंसान नहीं है लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है द स्टॉर्म। सो बेसिकली इट्स नॉट अ कैरेक्टर बट अ ड्रामेटिक टूल। इसको हम ड्रामेटिक टूल बोलेंगे क्योंकि इट्स प्रॉस्पेरोस विल बी मेड फिजिकल। ये प्रॉस्पेरो की प्लानिंग है, ये स्टॉर्म है ना, उसकी प्लानिंग का टूल है जो अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए काम कर रहा है। प्रॉस्पेरो खुद तो वहाँ नहीं आया ना उनको यहाँ बुलाने के लिए, उसने अपनी जगह स्ट्रॉम क्रिएट करके भेज दिया। तो ये भी एक कैरेक्टर है, टूल कैरेक्टर बेसिकली। देखिए सीन 1 में ना, अगर हम जैसे हम यूपीएससी के कंसर्न में हम पढ़ाई करते हैं यहाँ पर, तो हम क्योंकि द टेम्पेस्ट जो हमारे यूपीएससी के सिलेबस में है और किंग लियर भी है, ये क्वेश्चन उनके लिए नहीं है जो बीए या एमए में पढ़ते हैं कि हाउ डज सीन 1 सेट, मतलब ये वाला क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन मैं अभी जो डिस्कस करूँगी आप वहाँ पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि सीन 1 ने क्या टोन, इस प्ले का क्या टोन एज अ ट्रेजिक कॉमेडी सेट किया है। टोन यहाँ पर ये है कि जो सीन 1 है दैट इंट्रोड्यूसेस द टेम्पेस्ट यूनिक ब्लेंड ऑफ tragedy and comedy, the essence of tragicomedy. The violent storm and fear of shipwreck create an atmosphere of impending doom that is too tragic, while the exchanges between the boatswain and the nobles introduce humor and social satire which is comic. The chaos is physical but no one actually dies. कोई मरा नहीं है इसमें, क्योंकि ट्रैजिक कॉमेडी ना, अगर ये ट्रेजेडी होती तो मर जाते लोग या एंड में मर जाते, लेकिन इसमें कोई मरेगा नहीं क्योंकि ये ट्रैजिक कॉमेडी है, ठीक है। which deflates the tragic intensity and hints at a comic resolution ahead. This establishes a tone of serious conflict with a promise of eventual harmony, characteristics of a Shakespearean tragicomedy. अब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि बॉट्सवेन जो है वो एक सिंबल है न्यू वर्ल्ड अथॉरिटी का ओवर ओल्ड एरिस्टोक्रेसी। तो वो कैसे है कि बॉट्सवेन जो है ही सिंबलाइजेस practical merit, an emergent authority, a key feature of New World Order. He openly defies the traditional class hierarchy, telling the nobles to stay below the deck and let the sailors do their jobs.
और वो कहता भी है ना, एक लाइन में भी कहता है इसमें, यू आर अ काउंसलर, इफ़ यू कैन कमांड दिस एलिमेंट्स टू साइलेंस यूज योर अथॉरिटी. तो फ्रॉम दिस डायलॉग ही मॉक्स द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉवेल्स, the novel titles actually, in the face of natural disaster. In this moment, skill trumps status, reflecting a proto-modern view where meritocracy challenges aristocratic entitlement. हाँ, अब जो तीसरी चीज़ मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, ये थोड़ा सा वही मैंने बोला ना यूपीएससी वालों के लिए. कंपेयर द स्टॉर्म इन दिस सीन विद द स्टॉर्म इन किंग लेयर विच इज़ इन एक्ट 3 सीन 2. देखो, जो दोनों स्टॉर्म हैं दे सर्व एज कैटलिस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. इसमें जैसे यहाँ पर जो ड्यूक्स है, किंग्स हैं, इनको भी रियलिटी कहीं ना कहीं ये लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि अब हमारे टाइटल्स किसी काम के नहीं. सिमिलरली लियर ने भी किया था. किंग लियर यूजेस अ स्टॉर्म टू डिपिक्ट मेंटल कोलैप्स एंड कॉस्मिक इनजस्टिस एंड बट मतलब किंग लियर पे तो यहाँ ऐसे यूज़ हुआ था, बट द टेम्पेस्ट uses a storm as a dramatic reset, enabling reconciliation and renewal. So this is all about scene 1. Now we will discuss scene 2. हाँ जी, अब scene 2 पर आते हैं. इसका जो सेटिंग है वो बिल्कुल कंट्रास्ट है scene 1 के. ये जिसकी सेटिंग है एक्चुअली it's on the Prospero's island, a calm and magical contrast to the storm-tossed sea. इसकी सीन की जो लेंथ है, इट्स द लॉन्गेस्ट सीन इन द प्ले. पूरे प्ले में सबसे एक्ट 1 में जो सीन 1 है वो बहुत छोटा सा है. उसमें कुछ ही मतलब 2.5 पेज. लेट मी चेक. ऑलमोस्ट 2 पेजेस का है. 2.5 मतलब 2.5 भी प्रॉपर नहीं है, 2.5 पेजेस का है ये. लेकिन जो सीन 2 है वो काफ़ी बड़ा है. इट इज़ द लॉन्गेस्ट सीन इन द प्ले. इट लेज आउट द बैक स्टोरी. थोड़ा यहाँ पे फ्लैश बैक आता है, जैसे मूवीज़ में आता है ना फ्लैश बैक, यहाँ फ्लैश बैक आया है इसलिए भी थोड़ा सा ये बड़ा है. इट इज़ ऑल्सो एन इंट्रोडक्शन. ये इंट्रोडक्शन भी है. ये सेंट्रल कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करेगा. इट सेट्स अप द प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिलेशनशिप. सो अगर हम बात करें इसकी सेटिंग की, तो इट इज़ कंट्रास्ट विद सीन 1. आफ्टर द chaos of the storm at sea, this grounded and quieter location marks a shift to reflection, magic and revelation. ये एक स्पेस ऑफ पावर भी है. प्रॉस्पेरो जो है उसका जो सेल है इज़ वेयर ही wields his magic and manipulates events. It symbolizes intellectual and mystical control, unlike the physical control seen on the ship. ये एक symbolic function भी है. कैसे? Because the island represents isolation, it represents exile and eventually transformation and reconciliation, and these both are central ideas of tragicomedy. कि यहाँ पे transformation होगा, यहाँ पे reconciliation होगा. एक और जो चीज़ यहाँ पे सेटिंग में हम डिस्कस कर सकते हैं वो है सुपर नेचुरल एटमोसफेयर. द आइलैंड्स मिस्टिकल ऑरा इज रीइंफोर्स्ड थ्रू एरियाज मैजिकल एक्ट्स एंड कैलिबन के कैरेक्टर इसमें आ जाएगा जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. कैलिबन्स ईवी प्रेजेंस एस्टेब्लिशिंग द फैंटास्टिकल टोन ऑफ द प्ले. सो इफ़ यू टॉक अबाउट प्लॉट, तो इन ऑन दिस मिस्टिकल आइलैंड मिरांडा जो कि प्रॉस्पेरो की बेटी है, शी प्लेड्स विद हर फादर प्रॉस्पेरो टू काम द स्टॉर्म. वो दोनों फादर और बेटी जो है स्टॉर्म को देख रहे हैं. वो कहती है कि ना आप इसको प्लीज़ काम कर दो, बिकॉज शी नोज़ हर फादर वेरी वेल कि उसके फादर ने क्रिएट किया होगा. ही शी नोज़ अबाउट हर फादर्स पावर्स एंड नॉलेज. तो हिज फादर नोज़ मैजिक, तो उसको पता है ये बात. तो वो बोलती है कि भाई इसको काम डाउन करो स्टॉर्म को. तो प्रॉस्पेरो देन रिवील्स द ट्रूथ ऑफ देयर पास्ट. तो यहाँ पर फ्लैश बैक में चला जाता है. वो पूरी स्टोरी बताता है उसको कि व्हेन यू वर एन इन्फेंट बेबी, बहुत छोटी बच्ची थी ये, तब ऐसे ऐसे हुआ था. ही वॉज वंस द ड्यूक ऑफ मिलान एंड ही वॉज ओवरथ्रोन बाय हिज ओन ब्रदर एंटोनियो विद द हेल्प ऑफ किंग ऑफ नेपल्स हु इज़ अलोंसो. सो कास्ट आउट टू सी, ही एंड मिरांडा सर्वाइव्ड and he have lived on the island ever since.
तो बता देता है वो सब कुछ, भाई अब तब से अब तक रह रहे। तो मिरांडा भी थोड़ा रिकॉल करती है, उसको बहुत ही हार्डली, बहुत ही रेयरली उसको याद आता है कि भाई हाँ शायद कुछ फीमेल नर्स उसको केयर करती थी, क्योंकि उसकी मदर नहीं थी ना, तो वो उसको केयर करती थी, लेकिन उसको बहुत ही कम याद आता है। तो प्रोस्पेरो देयर यूजेस हिज मैजिक टू कमांड द स्पिरिट एरियल। देखो वो एरियल को बुला लेता है। ये प्रोस्पेरो है, ये मिरांडा है, ये कैलिबन है जो कि एक स्कॉप के वो कह सकते हो आदि मानव, ठीक है, और ये एरियल है। इसके तो जो प्लानिंग है पूरी वो तो ख़राब हो जाएगी। तो ये मतलब इस आइलैंड पर ये रहता है, प्रोस्पेरो रह रहा है इसके साथ, और ये इसकी डॉटर रह रही है यहाँ पर, एरियल रह रहा है। ये इसको चाहता है कि भाई कभी ना कभी इसको फ्री तो करेगा, लेकिन ये प्रोस्पेरो डिले कर रहा है। अब जो कैलिबन है वो भी इसका स्लेव है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि इसे कब फ्री करेगा। तो ये इसका एक तरह से इसका अंदर ही अंदर इसका दुश्मन सा है, बना हुआ है ये। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्डिनेंड और ये बताता है आके कि भाई सब आ गए हैं आइलैंड पे, सब सेफ पहुँच गए हैं। तो मिरांडा पहली बार किसी बहुत ही हैंडसम इंसान को, किसी हैंडसम लड़के को दिखती है, और ये दोनों दे फॉल इन लव विथ ईच अदर एट फर्स्ट साइट। प्रोस्पेरो को पता है ये बात कि भाई मेरी बेटी इसको प्यार करने लग गई है, और inwardly he is pleased now, but he pretends to be stern and imprisons Ferdinand to test his intentions। उसको ये भी तो देखना है ना कि भाई इसकी इंटेंशन क्या हो सकता है, मेरी बेटी को धोखा दे दे आगे चलकर, बिकॉज इसका फादर भी तो ऐसा ही है। इसके फादर ने अगर हेल्प नहीं की होती एंटोनियो को, तो ये इसको कभी भी एग्जाइल नहीं मिलता। तो टेस्ट तो लेना बनता है, तो ये टेस्ट लेगा। सो दिस सीन प्रोवाइड्स एक्सपोजिशन इंट्रोड्यूसिंग की रिलेशनशिप्स एंड थीम्स आर, इसमें जो थीम्स है वो है पावर, बिट्रायल, कॉलोनियलिज्म। पावर इसके पास है, बिट्रायल इसके फर्डिनेंड के फादर ने और इसके अपने भाई एंटोनियो ने मिलकर इसको प्रोस्पेरो को दिया है। कॉलोनियलिज्म यहाँ पर कैलिबन का कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसने आकर यहाँ अपनी कॉलोनी बनाई, इसको कॉलोनाइज कर लिया, कैप्चर कर लिया। और लव जो है वो ये मिरांडा और क्या बोलते हैं इसको, फर्डिनेंड, इन दोनों के बीच में है। तो ये थीम है, एंड दे ऑल सेट्स द प्लेस मैजिकल टोन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लॉट। अब हम मेजर प्लॉट डेवलपमेंट की बात करें तो मिरांडा की सिंपैथी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिरांडा शी इज़ डीपली डिस्टर्ब्ड बाय द स्टॉर्म। शी प्लीड्स हर फादर टू काम द सी एंड सेव द पैसेंजर्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मिरांडा कितनी सिंपैथी वाली लड़की है, उसको कितनी सिंपैथी है, उसे दूसरों की बहुत ज़्यादा केयर है। वो नहीं देख पा रही कि अगर ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग कंटिन्यू रहेगा तो पैसेंजर्स की जान पर खतरा हो सकता है। तो ये मना कर देती कि भाई अब बंद कर दो, शांत कर दो। सो दिस इमीडिएटली शोज़ हर इनेट कंपैशन एंड कंसर्न्स फॉर अदर्स इवन स्ट्रेंजर्स। वो नहीं जानती ना कि शिप पर कौन है, और तो ये भी नहीं जानती कि उसके अपने अंकल हैं या बाकी लोग हैं, कौन है। उसको पता है कि एक शिप है और रैग्ड ऑलमोस्ट, उसमें कुछ लोग हैं, और अगर ये स्टॉर्म कंटिन्यू रहा तो लोग मर जाएंगे। तो उसके मन में, उसके दिल में स्ट्रेंजर्स के लिए भी काफ़ी कंपैशन है और काफ़ी कंसर्न है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मिरांडाज सिंपैथी। अभी अगला है प्रोस्पेरोज रेवलेशंस। देखो अब यहाँ पे ना प्रोस्पेरो ने काफ़ी रिवील किया है अपना पास्ट, अपनी बेटी को। उसकी बेटी को नहीं पता ये सारी बातें, तो ये इसलिए भी सीन बड़ा है सीन तो, क्योंकि सारा फ्लैशबैक होता है उसमें। तो प्रोस्पेरो रिवील्स देयर ट्रू आइडेंटिटी, कि भाई वो पहले कभी ही वॉज वंस द ड्यूक ऑफ मिलान एंड शी वॉज द प्रिंसेस। एंड ही ऑल्सो रिवील दैट हिज ब्रदर एंटोनियो betrayed him, usurping his dukedom with the help of Alonso, who is king of Naples. He and baby Miranda were cast out to sea, but Gonzalo helped them, so they survived and arrived at the island with the help of Gonzalo. So this part delivers the exposition कि जो पॉलिटिकल बिट्रायल है ना, दैट सेट्स द होल स्टोरी मोशन। तो काफ़ी रेवलेशन यहाँ पर हुआ है जो प्रोस्पेरो ने किया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रोस्पेरोज मैजिक एंड कंट्रोल। देखो प्रोस्पेरो जो है
वो he reveals that his control over the island through magic, and the magic was aided by his spirit servant Ariel. वो मैजिक तो करना जानता है, लेकिन उस मैजिक में उसकी हेल्प ये क्रीचर करता है। अतः ये जो एरियल है, ये जो स्पिरिट है, ये इसको करती है। मतलब जो इसका मैजिक है और जो इसका कंट्रोल है सिचुएशन के ऊपर, वो कहीं ना कहीं एरियल स्पिरिट सर्वेंट है जो उसकी हेल्प से है। ही Prospero assures Miranda that no one on the ship has died and all is part of his greater plan. सब मरे नहीं है ना, तो ऐसा नहीं कि वो रिवेंज नहीं लेगा, वो लेगा रिवेंज। यही तो उसका प्लान है कि सबको सेफ एंड अलाइव यहाँ पर लाया जाए। अगर कोई मर गया तो फिर रिवेंज किससे लेगा? मरने के बाद थोड़ी रिवेंज होता है। यहाँ पर इस सीन में हमें एरियल का इंट्रोडक्शन होता है। ऐसे तो मिरांडा का भी इंट्रोडक्शन इसी में ही हुआ है, देखा जाए तो कैलिबन का भी यही हुआ है, एरियल का भी यही हुआ है। बाकी सबका तो हो चुका था पहले से, लेकिन 3 कैरेक्टर्स का हुआ है। तो आप खुद से ऐड भी कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मिरांडा। ठीक है। सो एरियल गिव्स अ रिपोर्ट ऑफ द शिपवreck एंड all passengers are safe and scattered on the island. Ariel tells how he carried out Prospero's orders and raising the storms, separating the people and ensuring no harm came to them. और साथ ही साथ एरियल रिमाइंड्स प्रॉस्पेरो ऑफ द प्रॉमिस ऑफ फ्रीडम। वो टाइम टू टाइम उसको याद दिलाता रहता है, बट प्रॉस्पेरो डिलीज इट, शोइंग हिज स्ट्रिक्ट एंड कंट्रोलिंग नेचर। लेकिन वो करेगा उसको। जब लास्ट सीन में, लास्ट एक्ट का लास्ट सीन होगा ना, एरियल को ये करेगा, और शायद कैलिबन को भी कर देगा ये, और कह देगा उसको कि जाओ तुम आज से आइलैंड के मालिक को। सो एरियल्स बैक स्टोरी इज ऑल्सो गिवन हेयर, कि कैसे ही वॉज वंस ट्रैप्ड बाय द विच सिकोरेक्स हु इज़ मदर ऑफ कैलिबन एंड प्रॉस्पेरो फ्रीड हिम। तो इसी वजह से एरियल उसको मतलब सर्व कर रहा है आज भी, क्योंकि उसको उस बुरी विच से उसने बचाया है ना। फिर भी प्रॉस्पेरो तो फिर भी अच्छा है, इफ़ वी कंपेयर हिम टू द विच सिकोरेक्स। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कैलिबन की। तो कैलिबन जो है, ये मैंने आपको कई बार बता दिया कि ही इज सिकोरेक्स सन, अ नेटिव ऑफ द आइलैंड। ये हमेशा रिजेंट करता है प्रॉस्पेरो को फॉर एनस्लेविंग हिम एंड टेकिंग द आइलैंड डिस्पाइट वंस शोइंग हिम हॉस्पिटैलिटी। सो प्रॉस्पेरो ने इसको बॉन्ड डेविल भी कहता है, ठीक है। एंड जस्टिफाइज इज कंट्रोल। वो जस्टिफाई करते हैं कि भाई मैं तुम्हें कंट्रोल में क्यों रखा, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ। अगर मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रखूँगा तो तुम मुझे और मेरी बेटी को मार दोगे। ये भी बहुत बड़ा सच है। सो प्रॉस्पेरो कॉल्स हिम बॉन्ड डेविल एंड जस्टिफाइज इज कंट्रोल बाय साइटिंग कैलिबन्स अटेम्प्ट रेप ऑफ मिरांडा। इसने ये भी एक बार ट्राई किया होता है, क्योंकि इसने कैलिबन मतलब इसने ही अटेम्प्टेड टू रेप मिरांडा। तो ये भी बहुत 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 बड़ा रीज़न है कि भाई इसको तो कंट्रोल करके रखना बहुत ज़रूरी है। एंड द इंट्रैक्शंस प्रॉस्पेरो और इसका जो इंट्रैक्शन है मिरांडा का, इट हाईलाइट्स द थीम ऑफ कॉलोनियलिज्म, पावर एंड सब्जुगेशन। अगला है यहाँ पर ये जो लास्ट है इसका, फर्डिनेंड मिरांडास मीटिंग। सो एरियल लीड्स फर्डिनेंड सन ऑफ ओलोंजो। वो भी किसके कहने पर? प्रॉस्पेरो के कहने पर। उसने लीड किया फर्डिनेंड को, मतलब कि वो प्रॉस्पेरो और मिरांडा से मिला। और पहले मिरांडा से पहले मिरांडा इंस्टेंटली फॉल्स इन लव विथ हिम। तो मतलब वो कहती भी है कि आई माइट कॉल हिम अ थिंग डिवाइन और नथिंग नेचुरल आई एवर सो नोबल। तो वो मतलब अपने फादर को बोलती है कि भाई मैं इससे प्यार करती हूँ, मैंने तो कभी उसके जैसा कोई देखा ही नहीं। तो सच्ची उसने कभी किसी को ऐसे नहीं देखा है। इंसान के नाम पे तो उसके फादर ही उसके साथ रह रहे थे। कैलिबन रह रहा था जो कि एक डेविल है ऑलमोस्ट। ऐसा लड़का और ऐसा इंसान तो उसने पहली बार देखा है, तो प्यार में पड़ना तो भाई लाजमी है। सो बेसिकली वो बता देती है, लेकिन प्रॉस्पेरो नहीं उसको दिखाएगा कि भाई मैं खुश हूँ इस बात से। ही प्रिटेंड्स टू अपोज द मैच एंड इम्प्रिजन्स फर्डिनेंड नॉट आउट ऑफ हॉस्टिलिटी बट टू स्लो द लव एंड इंश्योर इट्स सिंसेरिटी।
वो उसको ना कैप्चर कर लेता है, इम्प्रिजन कर लेता है। इसलिए नहीं कि वो इन दोनों के प्यार के खिलाफ या कल को इन दोनों की शादी नहीं कराएगा, कराएगा, उसका प्लान ही यही है। लेकिन वो ना अपनी बेटी की शादी ऐसे थोड़ी कर देगा। वो टेस्ट कर रहा है फर्डिनेंड को, उसकी इंटेंशंस को, कि वो कितना सिंसियर है, कितना लॉयल है, कितना वो चाहता है उसकी बेटी को। सो दिस लेज द ग्राउंड फॉर द रोमांटिक सब प्लॉट एंड इवेंचुअली रिकन्सिलिएशन। ये भी एक रीज़न बनेगा ओलोंजो ओलोंजो जो कि इसके फादर हैं फर्डिनेंड के, और इसका क्या नाम है, इसका प्रॉस्पेरो के रिकन्सिलिएशन का ये फ्रेम ग्राउंड वर्क बनेगा ये। ठीक है। सो अब हम पढ़ते हैं मेजर थीम्स। सो मेजर थीम में है कॉलोनियलिज्म। सो प्रॉस्पेरोज कंट्रोल ओवर द आइलैंड एंड कैलिबन्स रिफ्लेक्ट्स अर्ली मॉडर्न कॉलोनियल डायनामिक्स। कैलिबिन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है नेटिव अदर्स में, सीन बोथ है सेवेज एंड रॉन्ग्ड। इसके साथ गलत तो देखो हुआ है, किसी के आइलैंड पे जाके उसके वहाँ के नेटिव लोगों को अपनी कॉलोनी बना लेना, वहाँ के लोगों को अपना कॉलोनाइज बना लेना, अपना स्लेव बना लेना, ये बहुत गलत है। इंडिया तो इसका एक्चुअली बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज़ का। यहाँ तो पता नहीं कितने लोगों ने इन्वेट किया है, यहीं के नेटिव्स को अपना स्लेव बनाया है, और ब्रिटिशर्स उनमें सबसे लास्ट थे। लेकिन तो हम लोग तो इस चीज़ को ज़्यादा समझ सकते हैं कि कॉलोनियलिज्म क्या फील कराता है नेटिव्स को, कि जगह हमारी, रिसोर्सेज हमारे, सब कुछ हमारा, लेकिन मालिक कोई और है, कंट्रोल किसी और का है। तो बुरा तो देखो लगता ही है। तो कैलिबन कहीं ना कहीं उसका ऐसे बुरा मानना लाजमी है। कि वो यहाँ का नेटिव है, वही यहाँ का मालिक होना चाहिए, क्योंकि और तो यहाँ कोई रहता नहीं है। लेकिन प्रॉस्पेरो ने अपनी मैजिक से अपनी अथॉरिटी यहाँ पर जमा ली है। कॉलोनियलिज्म को रिप्रेजेंट यहाँ पे कैलिबन और प्रॉस्पेरो का कैरेक्टर, उनको दोनों का जो एक रिलेशनशिप है, मतलब इन दोनों का जो मतलब स्लेव और मास्टर का जो रिलेशनशिप है, ये यहाँ रिप्रेजेंट करता है। अगला है पावर एंड कंट्रोल। प्रॉस्पेरो वील्ड्स पावर थ्रू नॉलेज। जो बुक्स अपने साथ लाया था ना, वहाँ से उसने पावर वील्ड की और मैजिक वहाँ से सीखा, और फिर कंट्रोल किया किसको? ही कंट्रोल्स एरियल, कैलिबन, मिरांडा को भी तो किया है, मिरांडा को भी किया उसने, एंड इवन फर्डिनेंड, सबको, सी तक को कंट्रोल कर रखा उसने। सो ही कंट्रोल्स एरियल, कैलिबन, मिरांडा एंड इवन फर्डिनेंड। सी को भी कंट्रोल किया उसने। एंड इट शोज़ हाउ मैनिपुलेशन शेप्स द नरेटिव। कैसे कहानी उसके हिसाब से चलेगा, ये पूरा प्ले उसके हिसाब से चलेगा, प्रॉस्पेरो के हिसाब से, क्योंकि उसने अपनी पावर से, पूरा अपने मैजिक से उसने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, लोगों को भी और सिचुएशन को भी। फॉरगिवनेस एंड रिवेंज। While Prospero is setting events in motion to punish his enemies, किया तो देखो इसलिए ही है कि अपने एनिमीज़ को पनिश करेगा। He does so with a long term vision of forgiveness and justice। लेकिन उसके मन में ये भी है कि अगर सब अगर रिपेंट कर लेंगे तो कहीं ना कहीं माफ़ी कर लेगा, लेकिन उसके लिए सबको यहाँ पे लाना पड़ेगा। अगला है लव एंड इनोसेंस। मिरांडा और फर्डिनेंड की जो मीटिंग है, it brings tenderness, hope and contrast with political betrayal, कि अब कुछ अच्छा हो सकता है। If we talk about motives and symbols, तो आइलैंड जो है ये एक लिमिनल मैजिकल स्पेस है, वेयर सोशल हायरार्कीज आर ब्रोकन एंड रिजॉल्व। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ वही सब कुछ है जो मैजिकल स्पेस है, नहीं ये सब कुछ प्रॉस्पेरो के साथ चल रहा है, कोई टाइटल यहाँ काम नहीं आएगा। मैजिक एंड बुक्स, ये जो है ये सिंबल है प्रॉस्पेरो के इंटेलेक्ट का और कंट्रोल का, कि सिर्फ बुक्स से पढ़कर उसने मैजिक सीख लिया। एक विच को उसने यहाँ से भगा दिया इस आइलैंड से, एरियल जैसी स्पिरिट को उसने अपने कंट्रोल में कर लिया, सी जो इतना ताकतवर होता है, खुद भी इतना ताकतवर होता है, उसको कंट्रोल कर लिया, और पूरी जो कहानी अपने हिसाब से वो चलाएगा आगे चलकर। सर्विट्यूड, यहाँ पे दो करेक्टर्स हैं, एरियल एंड कैलिबन। दे बोथ रिफ्लेक्ट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग एनस्लेव्ड। एरियल इसलिए उसको स्लेव बना क्योंकि उसको पता है कि एक दिन तो ये मुझे फ्री करेगा। कैलिबन इसलिए रखा है, मतलब उसका सर्विस में एनस्लेव्ड है इसके, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। उसकी मदर जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी वो जा चुकी है वहाँ पर, मे बी शायद मर गई है।
लेकिन अब उसके पास कोई और ऑप्शन है नहीं. So this is all about um, Act 1. Act 1 of The Tempest masterfully sets the stage of Shakespeare's unique blend of tragedy and comedy. The opening storm scene, which is scene 1, plunges the audience into chaos, breaking social hierarchies, highlights the fragile nature of human authority in the face of elemental power. Scene 2 जो है by contrast introduces us to Prospero's world of magic, memory and manipulation. Through his conversation with Miranda, we gain insight into his past injustice and his desire for justice, not for revenge, setting in motion the play's central themes of power, forgiveness, and transformation. This act also introduces vital characters like Ariel, who is the spirit of air and service. ये जो एरियल है ना, ये एयर और सर्विस का स्पिरिट है ये. एंड द कैलिबन, द एम्बॉडीमेंट ऑफ colonized resentment and raw nature. Both are key to understanding Prospero's moral and political dilemma. So Act 1 serves as a microcosm of the entire play. आपको मतलब एक बैकग्राउंड पता चल गया कहानी का इस पूरे एक्ट 1 से. इट रिप्रेजेंट्स डिसऑर्डर एंड स्टॉर्म, बट ऑल्सो हिंट्स एट द पोटेंशियल फॉर हीलिंग, सेल्फ डिस्कवरी एंड रेस्टोरेशन. इट्स द हॉलमार्क ऑफ दिस प्ले is a hallmark of Shakespearean tragicomedy. So as we conclude today's class on Act 1 of The Tempest, we have explored how Shakespeare immediately immerses us in both physical and moral turbulence. The storm in scene 1 is not just a literal tempest, but a symbolical disruption of authority, power, and order. It raised deep questions about leadership, legitimacy, and human vulnerability. In scene 2, we are drawn into Prospero's psychological and magical world, where past betrayals, political ambition, and the promise of retribution are intricately woven together. Through detailed analysis of key characters, key quotes, we have begun to see how the Tempest functions as a tragicomedy, blending suffering with humor, magic with realism, and exile with the hope of reconciliation. So this act sets up the emotional and thematic foundation upon which the entire narrative will unfold. In our next session, we will continue to trace these threads as we move deeper into the enchanted island and its complex of relationships. So in our next class, we will continue this with Act 2 of The Tempest, which is written by William Shakespeare. Thank you.